Is my screen visible to you all? Okay, today agenda is exception handling in Spring Boot. So I've made this documentation and I've shared it with you all. Now I will try to do it line by line. Okay. So let's come back and make that endpoint which will get me a player. I will pass the player's jersey number. It will return me the okay pass jersey number as parameter and return the player object. This is the use case, right? We had done this yesterday, but for the sake of the argument, I am doing it right all over again. So what will we write? Public. What will we get in return? A player object, and I will say the function name as get player. We'll annotate it with some annotation. So which mapping? Get mapping, because we are fetching the data, and we'll say get player. Okay. And what should we pass the ID as now? As path variable will do. Right. So I come over here and say what? JNO. I say journal. Okay, whatever number you want to. And what will I take it over here as? Path variable. Which type of variable? And if I use the same variable as the path variable, no need to give any brackets over here, correct? Okay, all good. Now this is showing me a red line because I have promised I will return a player object which I have not done yet. So it is showing me red line. Now who will give me the player object? I'll go to the player service dot. Let's say I add a function called what? Get player, pass what to it? Jersey number, right? So is this method there? And whatever it returns, I will return, right? It is not there, hover on it and say create. So I create a function. So now from where will I get the player from? Repository. So I say player repository dot and I use the get okay find by ID. What I get? Find by ID, and find by ID will give me an optional because that player record may exist, may not exist. So when I say that get me this ID, so what will it return me? Optional player. What will it return me? Optional. So if they ask you any Java 8 feature you have worked on or you have used in your project, so you can say I use the optional of player. And okay, now this, if it is there, return the object. So I will say what? If player dot is present, player dot is present, return the player. But you have to get that now. This is just a, this is not the object. So from this player you will call the get method to get the actual object. Player dot get. This will return. And if it is not there, I will throw my custom exception. I will throw my custom exception. What? Player not found. So how will I create that? I will go to my packages and I will make an exception package. Which package? So in my ITP SMS, make a new package by the name SMS dot exception and make your custom exception. What name will you give to that? Player not found. So make a class by the name player not found exception. Okay. And if you want to choose a parent class, see interface, it has given a text area. One class can implement multiple interfaces, but for a super class it has given a text box, means one class can extend only one class. So if you want to check which class it will extend, so runtime exception, right? So click on that and then you finish. So you get the class. What you have to do over here is very simple. Just you have to make a
public constructor which will take an argument as a string. Okay, error message, and you pass that to the parent class constructor. Super. That's all you have to do over here. So first thing first is you make a, okay, have I written this over here? I've written it below, I guess. Okay, so this we can write over here. So this code I've written over here. This is in which package? Which package is this code in? Okay, so I will say in the com dot. Yeah, I'm making the instructions pretty user friendly. In the com dot itp dot exception package. Okay, so if you have SMS, right, dot exception dot make a class by the name. It should be your first pointer. And what you have to do in that class, just you have to make a constructor which is public and return that. Okay, all good so far, so good. Now what we have done is, now on which case we are, else what will I do? You always throw the object of the exception. So else throw new player. सेव ऑल किया है क्या? सेव ऑल नहीं किया, ये फंक्शन हो गया क्या? थ्रो न्यू player not found exception and give the message over here. Player with jersey number. What? Jersey number does not exist. Does not exist. Okay, so this will return player with jersey number. So if I enter 25, player with jersey number 25 does not exist. Okay. Now to handle, so if now let's come, are we handling this exception? No, right? We're just throwing the exception. And as it is an unchecked exception, it is not showing me any compilation errors. That you are throwing it, why aren't you catching it? Because it is a unchecked exception. So now let's try to hit this endpoint and check. So where is it in my controller? What is the endpoint name? Get player and jersey number, correct? So let's go and hit this. So I make a new endpoint. Get player, right? And I pass what to it? Virat. And this is get क्या जैसी नंबर? अरे मैंने वो पास किया ना, पास वेरिएबल किया ना, तो वो विराट जैसे नंबर में जाएगा, जैसे नंबर इसमें मैप हो जाएगा ना. पास वेरिएबल में कैसे किया था अपन ने? पास वेरिएबल में कैसा किया था? अब ये देखो इधर रिक्वेस्ट पैरम, ये जैसी नंबर है, क्या पास किया मैंने? एबीसी कैसे मैप हो रहे हैं? तो मैं पास करते हुए कैसे पास करता था? पास करते वक्त कैसे पास किया था मैंने? बाय पास वेरिएबल स्लैश जसप्रीत स्लैश 5/70. I'm passing them as a part of the. So is this what I'm asking? Jersey number, right? Okay. My bad. Jersey numbers क्या अपने पास? तुम लोग वो बोल रहे थे क्या? मेरा तो जर्सी नंबर लिखने बोल रहे. जर्सी नंबर कौन से अपने पास? तो स्टूडेंट है क्या अपने पास? नहीं, ये तुम लोग का नहीं है. तुम लोग का कौन सा है? हाँ,
शिवम शिवम है तुम लोग के नाम में ना? ITP क्या किधर है ये वाला? ये तो प्लेयर क्लास है। हाँ। अभी मैं अगर पास करता हूँ 9 नंबर, क्या करता हूँ मैं, तो मुझे क्या देगा रिटर्न में? वो धोनी देगा। धोनी आ गया। और अगर मैं पास करता हूँ 90 नंबर तो क्या आएगा? एक्सेप्शन। उसको भी हैंडल नहीं कर रहा है तो फट रहा है, तो 500 आ गया। 500 वाले तो आपके प्रोग्रामिंग की वजह से एरर आया है, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो अभी थ्रो हो रहा है तो कोई ना कोई हैंडल होना चाहिए। अब स्प्रिंग बूट का हैंडलिंग बहुत सिंपल और इजी है, बहुत आसान है उसका हैंडलिंग मैकेनिज्म। क्या करना है आपने, ये आपकी सर्विस क्लास है, ठीक है, यहाँ तक नाउ वी हैव कम टिल हियर। क्या करना है आपने, एक पैकेज बनाना है, किस नाम से? एक्सेप्शन। उसमें एक क्लास, ये बना लिया हम लोगों ने, ये ऑलरेडी बना लिया है क्या हम लोगों को? इसको यहाँ पर फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉम डॉट एस एम एस डॉट एक्सेप्शन में आपने एक क्लास बनाना है, क्या नाम से? ग्लोबल एक्सेप्शन। जितने भी एक्सेप्शन आएंगे वो यहाँ पर हैंडल होंगे। ठीक है, so come here, which package, make a new class by what name? This is a standardly followed protocol, the class name is global exception handler. ठीक है, so not experiment with the class name over here. Now what you do over here is, अब यहाँ पर जितने भी एक्सेप्शन आएंगे, प्लेयर नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड, टीचर नॉट फाउंड, वो सब कहाँ हैंडल होंगे? तो हर एक्सेप्शन का एक फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? जैसे अगर सार्क की मीटिंग होती है साउथ एशियन नेशंस की, तो हर साउथ एशियन नेशन का एक कैंडिडेट वहां जाता है, डिप्लोमेट। यस, तो वैसे हर एक्सेप्शन का यहाँ पर एक फंक्शन होगा। तो अभी हमको किसका फंक्शन डालना है इधर? प्लेयर नॉट फाउंड को कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो वो देखो मैंने यहाँ कोड लिखा है सिंपल सा। तो हैंडल व्हाट? प्लेयर नॉट फाउंड, एंड इट विल रिटर्न मी अ सिंपल स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लिखते हैं उसको। तो मुझे पब्लिक क्या रिटर्न करेगा? वो एक रिस्पॉन्स एंटिटी में सादी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। कौन सी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो? मुझे कौन सी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा? प्लेयर नंबर 90 डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या लिख दिया मैंने? ओके, अब ये कौन से एक्शन को हैंडल करने जा रहा हूं मैं? तो उसका वो है हैंडल और उस क्लास का नाम। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हैंडल कौन सा एक्सेप्शन। ठीक है, हैंडल कौन सी, तो ये प्रोटोकॉल है उनका, हैंडल प्लेयर नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर उसके लिए कोई क्लास बनाई है आपने, कस्टमाइज क्लास। इस एक्सेप्शन के लिए कोई क्लास है क्या? इस एक्सेप्शन के लिए कोई क्लास है ना भाई? ये कौन सी क्लास है ना? उसका आर्ग्यूमेंट उसके ब्रैकेट में पास कर देने का। उसका आर्ग्यूमेंट क्या कर देने का? ठीक है, तो उसका आर्ग्यूमेंट कहाँ पास कर देने का? उसके ब्रैकेट में। तो क्या पास करेंगे इधर? प्लेयर फाउंड, और ये क्या है? क्लास, राइट? उसका ऑब्जेक्ट बना दिया इधर, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। तो भी दे दिया अभी EX, अभी EX इसका ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब एक्सेप्शन वहां पर आएगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं AOP। क्या बोलते हैं इसको? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So if you asked in the interview, have you done AOP? So yes, I have done the exception handling mechanism, which I have implemented in my application, is an example of AOP. अब where is the exception coming? In the service class, but उसको यहाँ डिटेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमको इसको फिर क्लास को बोलना पड़ेगा कंट्रोलर एडवाइस। क्या बोलना पड़ेगा? कंट्रोलर एडवाइस अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा इधर मेथड के ऊपर? एक्सेप्शन हैंडलर। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शन है उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक्सेप्शन हैंडलर। और कौन से क्लास का एक्सेप्शन हैंडल करने वाला है ये?
प्लेयर नॉट फाउंड, तो यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा कि ये इस क्लास का एक्सेप्शन हैंडल करेगा। कौन सी क्लास? जो पैरामीटर में पास किया है उसी को ही। तो अभी जब भी इस क्लास का कोई भी एक्सेप्शन आएगा वो इस फंक्शन में आ जाएगा। तो इस क्लास का एक्सेप्शन पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी आए उसको ये सेंस कर लेगा और वो इधर आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी रिटर्न? अब जो एक्सेप्शन थ्रो किया है उसको ये कैच कर रहा है ना, तो वो जो मैसेज है वो EX में आ गया। तो आई विल रिटर्न व्हाट? आई एम रिटर्निंग अ न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ना ऑफ स्ट्रिंग। तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग, और क्या ये जो EX है उसका गेट मैसेज कर दो, एंड साथ में क्या रिटर्न करता है ये? एसटीडी स्टेटस कोड। ठीक है, तो देखो नॉट फाउंड करके एक रहेगा, दिख रहा है? तो ये सिंपल। अभी जब मैं इस कोड को, सेम कोड को रन करूंगा, अब मेरा कोड फटेगा नहीं और ऐसा नहीं दिखेगा क्लाइंट को। क्लाइंट को सिंपल क्या मैसेज क्या जाएगा? प्लेयर नंबर 90 डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, सारा हमने फील्डिंग जमा दी बराबर। मैंने सारे डॉक्यूमेंट से ही देखो कोड कॉपी करके लिखा है, देखो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में शेयर कर दिया। क्या बनाया? एक कंट्रोलर एडवाइस बनाया, एक क्लास बनाया। ये कंट्रोलर एडवाइस किस पे जाएगा? क्लास के ऊपर। इसका किससे क्या होगा? इस क्लास का एक्सेप्शन कहीं भी आ जाए वो यहां सुनेगा। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी टैक्स पे करे वो भारत सरकार के खजाने में आएगा। नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, कहीं भी कोई भी बंदा टैक्स पे कर रहा है वो आग में रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने में। तो ऐसा ही है, तो ये वो काम कर रहा है कंट्रोलर एडवाइस। इससे लगाने से आपका AOP एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या है मैं बताऊंगा डिटेल में, पर फिलहाल समझो। फिर एक क्लास बना लिया, इसमें क्या है? ग्लोबल इसका नाम ग्लोबल क्यों है? जितने भी एक्सेप्शन अकर होंगे मेरे एप्लीकेशन में वो सबको ये हैंडल करेगा। तो हर का एक एक फंक्शन रहेगा, हर एक का क्या रहेगा मेरे पास? एक एक। तो कल को मेरे पास एक है टीम नॉट फाउंड। क्या है? क्या करूंगा बोलो? इधर में यही फंक्शन कॉपी करूंगा और किसके लिए लिख दूंगा मैं सारा का सारा? जस्ट टू द चेंजेस। एक बार आपको कंपनी ज्वाइन किया आपने, आपने देख लिया कि ये पैटर्न है उनका, आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है बस। कॉर्पोरेट में काम बहुत सिंपल है, ज्वाइन द डॉट्स, ज्वाइन द डॉट्स। अब क्या करेंगे? कोड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, टीम नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास हैंडल टीम नॉट फाउंड, टीम नॉट फाउंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, बस। तो हर एक्सेप्शन का यहाँ पर हैंडलिंग होगा। ठीक है, और क्या किया हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर? रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी का स्ट्रिंग, और कहाँ से लाया उसको? जो मेरा ये EX है थ्रो हुआ ना, तो उसको कैच कौन करेगा? ये कैच करेगा। थ्रो किस टाइप का हुआ है? सर्विस में थ्रो जो हुआ है किस, कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ है? सर्विस में जो थ्रो हुआ है वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है? तो उसको कैच कौन करेगा? यही कैच करेगा ना, कैच कर लेगा क्या ये? तो वो ऑब्जेक्ट इस EX में आ गया, उसका गेट मैसेज दिखाया, तो क्या दिखाएगा? प्लेयर नंबर 18 डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी ब्ला 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 और नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब सेव किया मैंने। डिड आई रन द कोड? आई हैव रन द कोड ना? नो, लेट्स रन इट। तो रन इट फ्रॉम द मेन मेथड। ये मेन मेथड है ना? चेक कर लेते हैं कुछ एरर वेरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। अब ये पहला सिंपल वर्जन है, ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ टेस्ट डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। हम जो रियल टाइम में यूज़ करते हैं वो आगे आएगा थर्ड ऑप्शन में। चालू है ना भाई, इसके लिए तो ये आउटपुट आया। ये आउटपुट कैसे आएगा बगैर चालू हुए? वो बता रहा है चालू है, देखो मालूम चालू कहाँ से है वो चालू इंटेलिजेंट आइडिया से है, यहाँ से चालू है वो, तो यहाँ से बंद करना पड़ेगा। यहाँ से उठा रहा था वो, मैं प्रैक्टिस कर रहा था 2 के लिए, तो यहाँ से बंद कर दिया मैंने। अभी वो इसके लिए वो पोर्ट वहाँ बिजी था। ठीक है, अब यहाँ से चालू करेंगे।
जब तक वो मैसेज नहीं आ जाए स्टार्टेड और इतने सेकंड्स लगे तब तक आगे जाके एपीआई हिट करना नहीं। स्टार्टेड, ठीक है। अब यही एंड पॉइंट में हिट करता हूँ वापस, 90 है क्या हमारे पास। अब ये मुझे मेरा मैसेज दिखाएगा, प्लेयर विद जर्सी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मेक सेंस। बट अब मुझे उसको और डिटेल बताने हैं, जब भी एक्सेशन आए थोड़ा डिटेलिंग में बताया करो। तो फिर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लोर करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक मैप बना देंगे। क्या बना देंगे? ना, आई विल नॉट रिटर्न अ प्लेन स्ट्रिंग, आई विल रिटर्न अ मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। उसका नाम क्या दिया मैंने? बॉडी। न्यू हैश मैप। उसमें पहला तो पास किया एरर। एरर क्या है ये? और फिर उसका मैसेज, मैसेज कहाँ से आ रहा है, और फिर कितने बजे एरर आया, तो टाइम स्टैम्प, और फिर वो रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स एंटिटी में। ठीक है। अब ये फंक्शन में वापस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ क्या? समझो ये कोड, कैन आई कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड ओवर हियर? विल इट परमिट मी? इंडिया बोले कि हम 2 लोग भेजेंगे हमारे कैंडिडेट उस सार्क के मीटिंग में, अलाउ करेंगे वो लोग? अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मुझे ये कोड लिखा हो तो फिर मुझे ये कमेंट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इंपोर्ट कर लो जो भी इंपोर्ट करना है। क्या हो गया? ये फंक्शन लिखा ना मैंने, तो ये कोड कमेंट कर दिया, कंट्रोल अंडरस्टैंड। तो सेव कर रहा हूँ मैं आपको इंपोर्ट क्यों नहीं किया इसको? मैं आपको इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है ये? ओके, 2 बार आ गया ना रिटर्न न्यू। यहाँ पर नहीं चाहिए ना रिटर्न न्यू, यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए? मैप चाहिए। ओके, why is it not importing the map? देखो कुछ इंपोर्ट हुआ है क्या? ओके, देखो यहाँ से उसने मैप ले लिया है, हाइबरनेट मैपिंग से। अपने को चाहिए कहाँ से? यूटिल से। कहाँ से चाहिए अपने को? मैप फ्रॉम वेयर? ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग नाउ? ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी क्या होंगी फिर? अभी रिटर्न टाइप क्या होगा? मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ना अपन ने। ये तुम लोग कर लेंगे ना छोटी मोटी चीजें। ओके, so now when I will return the response object, same, for which exception? So if a exception occurs of that class anywhere, this will be returned. I'll make a map, give whatever name you want to give to the map. Map में कितने की वैल्यूज है? एक तो एरर, दूसरा, और फिर कितने बजे वो एक्सेप्शन आया है, और वो रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, अब सेव किया इसको। अब जाके सेम एंटिटी को हिट करता हूँ मैं वापस, तो देखो क्या रिस्पॉन्स आएगा। प्लेयर नॉट फाउंड, मैसेज क्या आएगा? प्लेयर विद जर्सी नंबर 99 डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस। So when you open your Android application और वो रिकॉर्ड नहीं होता है, वो ये ऑब्जेक्ट का मैसेज रीड करता है। अपन क्या करते हैं बैकएंड में से? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। जो यूआई वाले हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट का मैसेज दिखाते हैं कस्टमर को, तो उनका काम सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है फ्रंट एंड टीम का डेटा हमने देना है। तो यहाँ पर मैंने ये हिट करके देख लिया, मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं अपने जिरा टिकट को अपडेट कर दूंगा, लॉग आउट कर दूंगा, आई एम डन फॉर द डे। Now the front end team will take this endpoint and whatever response they will get, उसका डॉट मैसेज वो लोग डिस्प्ले कर देंगे क्लाइंट को। समझ में आ रहा है? ओके, अब इससे और अच्छा क्या हो सकता है? ये नंबर 2 हो गया। हम हमारी खुद की एक रिस्पॉन्स क्लास बना सकते हैं, सबसे बेस्ट। वी कैन मेक आवर own response class. That is option number 3. So go and make a itp.sms response package. Which package? So make your own customized response. So to have the response package, no. So I right click on the SMS, make a new package by the name SMS dot
response and देखो it is not properly aligned, so you can right click on the application name and then just refresh, वो अलाइन कर देगा सारे पैकेजेस को। ठीक है, रिस्पॉन्स में कुछ है नहीं, खाली है, राइट क्लिक और उस पर एक क्लास बना दो एरर रिस्पॉन्स। तो जब भी कोई एरर आएगा तो आप ये रिस्पॉन्स भेजेंगे एक्सेप्शन के थ्रू। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर डाले थे चीज़ें वो हम वहाँ डाल देंगे अभी। जो हमने यहाँ डाले थे, क्या क्या डाला था हमने, एरर क्या है, मैसेज क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है, एंड विल ऑल्सो पुट द स्टेटस कोड, विल ऑल्सो पुट द स्टेटस कोड। क्या आ रहा है ये, नॉट फाउंड का स्टेटस कोड क्या है 404, तो आ रहा है 404 आ रहा है, क्या आ रहा है, वो मुझे रिस्पॉन्स में भी चाहिए। क्या चाहिए, स्टेटस कोड क्या 404, तो आई विल मेक माई ओन क्लास। So how many attributes should I put in that? Just a Pojo class you have to make. Just a Pojo class. Tell me. तो प्राइवेट पहला क्या था, जो पहला है ये जो स्ट्रिंग है, टाइम स्टैम्प है और इंटीजर है। ठीक है, या स्टेटस कोड है। तो सी दिस प्राइवेट स्ट्रिंग एरर, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, लोकल डेट और स्टेटस कोड, बस ये 4 चीज़ें डाल दो। फिर कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर, टू स्ट्रिंग जो हम पोजो क्लास में करते हैं वो कर लो मैं। So now I will make my own customized error class. Got it? Local date को import कर लो util package से, कहाँ से, time package, sorry, from the, now right click, source, generate constructor using field. This is which constructor now? All args. If I have a all args, I better also have a no args. तो ये सब बना जो हम बनाते आए हैं, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। सोर्स जनरेट डेटा प्राइवेट डेटा है, तो बेटा जनरेट सेटर गेटर and source generate to string. This is just a simple Pojo class which we have done. Now when I will return the response, will it be a map, will it be a string, or will it be an object of response, error response? Third scenario में when I will return the response, first scenario में what was the response, second scenario में क्या था मैप, थर्ड scenario में क्या होगा, क्या होगा, ये दो अलाउ करेगा मुझे, नहीं अलाउ कर, यस। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, हमारी खुद का एरर रिस्पॉन्स SMS डॉट रिस्पॉन्स वाला। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एरर रिस्पॉन्स, एरर इज न्यू एरर रिस्पॉन्स। अब उसका कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, है ना कंस्ट्रक्टर, तो उसको फिर पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास कर देंगे कि भाई एरर किस टाइप का एरर है, ये है, राइट। दूसरा पैरामीटर क्या है उसका, मैसेज, मैसेज कहाँ से आ रहा है, इसके मैसेज से। तीसरा पैरामीटर क्या है उसका, किस टाइम पे हुआ, तो वो ये है। और चौथा क्या है, स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस डॉट कौन सा वाला, नॉट फाउंड, उसका मुझे चाहिए सिर्फ 404, तो डॉट वैल्यू, वैल्यू विल गिव मी इंटीजर वैल्यू, राइट। तो ये मैंने मेरा ऑब्जेक्ट बना दिया, and now what will I do, return this object, right, return this object। तो रिस्पॉन्स एंटिटी जो है किस टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रही है, एरर रिस्पॉन्स का, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, एरर है। और आपको पोस्टमैन में भी दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स एंटिटी को आपको 2 पैरामीटर पास करना ही है, आप एक पैरामीटर पास नहीं कर सकते। आप बोलोगे सिर्फ मुझे ये पास करना है, वो नहीं करेगा, उसका 2 पैरामीटर पास करना जरूरी, सही है। अब सेव किया, रन हो गया एप्लीकेशन मेरा। और अब हम जब 90 को हिट करेंगे, 90 है क्या नहीं, तो यू विल गेट अ रिस्पॉन्स ऑफ योर ओन कस्टमाइज्ड क्लास, प्लेयर नॉट फाउंड, मैसेज ये है, टाइम स्टैम्प ये है और स्टेटस क्या है
40. These are the 3 ways of exception handling you can do using the global exception handler. ओके, अगर मैं इसको भी अनकमेंट कर दूं, दोनों को रखूं, तो जैसे मैं सेव करूंगा कंपाइलेशन शुरू होगा और यहाँ पर वो फट जाएगा कोड, यहाँ पर कोड फट जाएगा। तो दो देखो दिख रहा है इधर। अगर मैं उसको नाम भी चेंज कर दूं, चलो भाई इसका नाम कर दूं 1 कर दूं, ये हैंडल 1 है, ये हैंडल 2 है, अभी सेव किया तो दिख रहा है एरर, एरर आ गया ना। क्यों एरर आ गया? क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलर इस क्लास का एक ही होगा, दो नहीं होंगे। सही है? अरे बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अब ये क्लास के अगर मैं ये कोड अनकमेंट कर दूं तो प्लेयर नॉट फाउंड के कितने हैंडलर्स है मेरे पास? 2 हैंडलर हो गए ना, तो वो एरर थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है कंपाइल टाइम। ठीक है, उसके लिए हर क्लास का एक ही हैंडलर होगा। सेव इट, ऑल गुड।